Should we start, sir? Yes, Pooja ji. Hello, good afternoon, everyone. I hope you all are fine. I welcome all the members of the Jodhpur branch in this webinar. Thank you all for joining in this webinar. And before thank you for joining, I would like to just bring your attention back towards the wonderful celebration of CA Day. I would like to thank all the members of the Jodhpur branch for the overwhelming participation in all the CA Day programs like Plantation Drive and Blood Donation Drive. Thank you all for the amazing efforts. And now, I, CA Pooja Dhoot, Secretary of Jodhpur branch of ICAI, would like to introduce today's renowned faculty, CA Akash Kofalia, who's going to start his discussion over the recent changes in GST. Before introducing him and briefing about his profile, I would like to invite Chairman Sir of Jodhpur branch, CA Dhaval Kothari, to give him the welcome address. Over to you, sir. Thank you, Pooja ji. Greetings of the day. I, CA Dhaval Kothari, Chairman of Jodhpur branch of CRC of ICI, welcome you on today's VCM on recent changes in GST. I extend very warm welcome and greetings to learned speaker of today's VCM, CA Akash Kofalia ji, a rising star of Jodhpur. I also welcome all managing committee members, all the senior members of the profession, participants and viewers. Not taking much of time, I hand over to CA Pooja Dhoot for further proceeding. Jai Hind, Jai ICI. Over to you. Yes, sir. So now I would like to introduce today's faculty, CA Akash Kofalia, rightly introduced by Dhaval sir, rising star of Jodhpur. Let me tell you about him. So he is a faculty on GST selected by ICAI. He's practicing in field of indirect taxation for almost 12 years. He's largely handling matters related to indirect taxes. He gives assistance and compliance related solutions in indirect taxes. He is representative in many appeals and hearing. He also is into writing opinions in matters of indirect taxes. He is a part of team of AIFTP Case Digest. He writes articles and edit cases for tax publishers. He has authored a book known as Migration to GST and Traditional Issues with Solutions in 2017, published by tax publishers. He is RSC committee member on behalf of Tax Bar Association Jodhpur in 2017-18. He was elected as executive committee member of Jodhpur branch of CIRC of ICAI 16-17. And he is member of study group of IDT Jaipur. And he is also a speaker in CA seminars, study circle meetings, orientation programs, and GMCS. We are really honored to have you here, sir. And now I would hand over the mic to Akash sir for the delightful lecture on recent changes in GST. Thank you, sir. Thank you very much. I extend my warm regards to the chairman of Jodhpur branch, CA Dhaval Kothari, to the secretary Pooja Dhoot. I am extremely overwhelmed for this opportunity to share my views on recent changes in GST. I also extend my warm regards to all the managing committee members who have joined and to all the members in profession who have joined this VCM. I tried to consolidate and concise all the recent amendments which have been introduced by way of notifications as well as circulars which are issued on 6th of July 2022 so that an ease of understanding can be developed as to how we have to apply these provisions in our day-to-day practice. For that, let's start with PPT. I hope PPT is visible to all of you. Right, Dhaval sir? Yes, Akash ji. So, in 47th GST Council meeting, you might have seen several changes have been introduced. कई सारे changes तो rates को rationalize करने से related है, जो जिनके relation में notifications जो हैं वो अभी तक issue नहीं हुए हैं. We all are waiting for those notifications because जो rate में rationalization introduce किया गया है, वो 18th of July से effect में आने का expectation है.
These rates rationalization are largely towards inverted duty structure ताकि उसको खत्म किया जा सके, and there are certain other rate changes as well as exemptions. अभी recently on 5th of July 2022 there are certain notifications issued from notification 9 to 14/2022 dated 5th July 2022 and 6th of July को circulars issue हुए हैं, सर्कुलर नंबर 170 टू सर्कुलर नंबर 176, जो कई सारे मैटर्स को क्लैरिफाई करते हैं। और इन सर्कुलर्स में कुछ मैटर्स तो ऐसे हैं जो लॉन्ग अवेटेड थे, कुछ मैटर्स ट्रेड फैसिलिटेशन से रिलेटेड है और कुछ क्लैरिफिकेशंस जो नए प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए उनको लेकर के है। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशंस के साथ शुरू करते हैं और साथ के साथ जैसे जैसे नोटिफिकेशंस हम देखेंगे उनसे रिलेटेड जो सर्कुलर्स होंगे उन्हें हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन, दैट इज नोटिफिकेशन 9/2022। इस नोटिफिकेशन में जो फाइनेंस एक्ट 2022 था उसमें तो सेक्शंस थे, सेक्शन 110 एंड सेक्शन 111, जो इफेक्ट में लेकर के आए गए हैं। तो क्या कहते हैं ये दो सेक्शंस? सबसे पहला अमेंडमेंट ये इंट्रोड्यूस किया है सेक्शन 50 सबसेक्शन 3। आई थिंक सेक्शन 50 से सभी वेल वर्स्ड हैं दैट जीएसटी लॉ में यदि इंटरेस्ट चार्ज करना है तो उसके लिए पेरेंट प्रोविजन इज सेक्शन 50, जो पहले कुछ और था, देन इट वाज अमेंडेड एंड नाउ इट इज फर्दर अमेंडेड एंड सेक्शन 50 के सब सेक्शन 3 में एक क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया है और इसमें ऐसा कहा गया है दैट यदि किसी असेसी ने या रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन ने इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल की है और उसे यूटिलाइज नहीं किया है और रिवर्स कर दी है, तो उसे इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। आई विल रिपीट इट अगेन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत समय से हम लोग चाह रहे थे इस तरह का प्रोविजन दैट यदि कोई एसएससी इनकरेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर लेता है लेकिन विदाउट यूटिलाइजेशन उसे रिवर्स कर देता है तो उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट नहीं पे करना है। लेकिन यदि इनकरेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर ली और उसे यूटिलाइज भी कर दिया और उसके बाद उसे रिवर्स कर रहा है तो उसे 24% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट पे करना रहेगा। Although section 50 says that it will be notified by government and it will not exceed 24% per annum, right? तो इंटरेस्ट के केस में एक बहुत क्लियर हो गया दैट यदि कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट इनकरेक्ट अवेल की है, उसे बिना यूटिलाइज किए रिवर्स कर दिया, देयर इज नो नीड टू पे इंटरेस्ट एंड दिस हैज बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1st of July 2017 itself। एंड जो 24% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इनकरेक्ट अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट पे है, यानी यदि इनकरेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल भी कर ली, यूज भी कर लिया, उसके बाद यदि रिवर्स करते हैं देन यू हैव टू रिवर्स इट अलोंग विद इंटरेस्ट और इंटरेस्ट विल बी एट द रेट ऑफ 24%। एक और मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया गया, अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है बाय वे ऑफ दिस नोटिफिकेशन 9/2022। एक ही एसएससी के एक ही पैन पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हमने देखे हैं। वो रजिस्ट्रेशन सिंगल स्टेट में भी हो सकते हैं, वो रजिस्ट्रेशन मल्टीपल स्टेट में भी हो सकते हैं एंड समटाइम्स इट हैज हैपेंड दैट एसएससी ने जो टैक्स का पेमेंट है वो इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर पे कर दिया। अभी तक तो क्या होता था, फॉर एग्जांपल एसएससी ने राजस्थान में भी रजिस्ट्रेशन ले रखा है और उसने गुजरात में भी रजिस्ट्रेशन ले रखा है। अब उसकी टैक्स लायबिलिटी तो बन रही है राजस्थान में और उसने गलती से टैक्स पेमेंट कर दिया गुजरात में, या फिर गुजरात के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसका बैलेंस अवेलेबल है। तो ऐसी स्थिति में क्या रहता था दैट राजस्थान में टैक्स लायबिलिटी जो अराइज हो रही है वहां पे तो उसे कैश लेजर के थ्रू टैक्स पे करना पड़ रहा है और गुजरात में जो टैक्स लायबिलिटी अराइज हो रही है वहां पे कैश लेजर में बैलेंस एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वर्किंग कैपिटल अफेक्ट हो रही थी। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या मॉडिफिकेशन लेके आए हैं दैट नोटिफिकेशन 9/2022 ये कहता है यदि एक ही पैन नंबर पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है और एक रजिस्ट्रेशन के पास
इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में IGST या CGST अवेलेबल है तो वो PMT 03 फाइल करके उस कैश लेजर के बैलेंस को दूसरे पैन नंबर पे ट्रांसफर कर सकता है, दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर पे ट्रांसफर कर सकता है अंडर सेम पैन। यानी जो हम सेक्शन 25 में डिस्टिंक्ट पर्संस को पढ़ते हैं उसी की बात यहाँ कही है, दैट इफ एनी एसएससी इज हैविंग मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर और किसी एक रजिस्ट्रेशन नंबर पे उसके पास कैश लेजर में बैलेंस है IGST का या CGST का, तो उस बैलेंस को वो दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर पे ट्रांसफर कर सकता है। तब क्वेश्चन ये राइज होता है दैट मान लीजिए एसएससी के पास राजस्थान में जो कैश बैलेंस है वो कैश लेजर में है SGST हेड में, और ये जो नोटिफिकेशन है 9/2022 ये कहता है यू कैन ओनली ट्रांसफर IGST और CGST, यू कैन नॉट ट्रांसफर SGST। तो क्या किया जाए? तो जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी एक अमेंडमेंट पहले आ चुका है दैट एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पे यदि कैश लेजर बैलेंस किसी और हेड में है उसे हम PMT 03 फाइल करके ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वन ऑफ द मैकेनिक्स विच यू कैन फॉलो इज आप पहले राजस्थान के SGST को IGST या CGST में ट्रांसफर कर लें और उसके बाद गुजरात में अगर आपको चाहिए तो आप वहां पे उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोविजन। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है दैट यदि कोई एसएससी अपने एक रजिस्ट्रेशन नंबर से दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर पे कैश लेजर के बैलेंस को ट्रांसफर कर रहा है तो उसे एश्योर करना होगा दैट जिस रजिस्ट्रेशन नंबर से वो ट्रांसफर कर रहा है वहां पे उसके लायबिलिटी लेजर में कोई भी लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग नहीं रहनी चाहिए। सिंपल एग्जांपल से समझें, यदि राजस्थान में एसएससी के पास कैश लेजर में सरप्लस कैश बैलेंस है और वो उसे गुजरात में ट्रांसफर करना चाह रहा है तो राजस्थान में उसकी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में किसी तरह की लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तभी वो कैश बैलेंस को, सरप्लस कैश बैलेंस को दूसरे एसएससी कोड में ट्रांसफर कर सकता है। तो दिस इज अबाउट नोटिफिकेशन 9/2022, वेरी गुड अमेंडमेंट, दोनों ही अमेंडमेंट बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट वी गो टू नोटिफिकेशन 10/2022, सेक्शन 44। एज यू आर अवेयर, सेक्शन 44 में कहा है दैट GSTR 9 has to be filed by all the registered taxable persons। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए एक ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर इंट्रोड्यूस किया गया दैट ऐसे रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्संस जिनका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 उनको GSTR 9 फाइल करने की आवश्यकता नहीं है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। हमने देखा पुराने सालों में भी ऐसा बेनिफिशियल प्रोविजन था सभी के पास और ये प्रोविजन को कंटिन्यू किया है 21-22 के लिए भी। Next, notification 11/22. As you might be remembering that जब 47th GST Council मीटिंग के प्रेस रिलीज आए थे तो उसमें ऐसा कहा था that composition taxable persons के लिए टाइम लिमिट को एक्सटेंड करना है, इनफैक्ट किया है, ऐसा डिसाइड किया था। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन यही कहता है दैट जिन लोगों को कंपोजिशन टैक्स पे करना है यानी कंपोजिशन फीस पे करनी है फॉर अप्रैल टू जून 22, तो उसके लिए लास्ट डेट ऑफ पेमेंट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 31 जुलाई 2022। लास्ट डेट रहा करती थी 18, उसे एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2022 तक ले जाया गया है। तो 31 जुलाई तक यदि कंपोजिशन फीस पे करते हैं तो कोई भी तरह का इंटरेस्ट या दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं अराइज होंगे। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन 12/22। नाउ नोटिफिकेशन 12/22 क्या कहता है दैट जो लास्ट डेट है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्संस के लिए वो एनुअल रिटर्न फाइल करने की यानी GSTR 4 फाइल करने की, वो उसके लिए जो टाइम पीरियड दे रखा था वो था 30th जून। दैट यदि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्संस 30th जून तक GSTR 4 फाइल करते हैं तो उन्हें किसी तरह की लेट फीस नहीं पे करनी है। इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया बाय फर्दर 4 वीक्स एंड इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 28th July 2022 फॉर फाइनेंशियल ईयर
21-22। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जिन असेसी को GSTR 4 फाइल करना है, they can file it up to 28 July 2022 without any late fees. So again, this is a welcome provision. This is a welcome notification at the part of government. Next, notification 13/2022. This notification is introduced to bring changes in section 73. सबसे पहले तो ये समझते हैं सेक्शन 73 है क्या। बहुत ही शॉर्ट में, सेक्शन 73 is related to demand and recovery provisions and ऐसे सिचुएशंस को कवर करता है जहां नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स हो, या फिर एरनस रिफंड हो, या इनकरेक्ट अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हो। बट ये सारी सिचुएशन विदाउट फ्रॉडुलेंट माइंड, यानी विदाउट फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ एक्ट्स एटसेट्रा। तो ऐसी सिचुएशन में जो सेक्शन 73 है वो एप्लीकेबल रहता है। और सेक्शन 73 में, सेक्शन 73(10) में ओरिजिनल टाइमलाइन दे रखी है 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द डेट जिस दिन एनुअल रिटर्न फाइल कर देना था। तो सेक्शन 73 क्या कहता है, दैट विदाउट इन्वोकिंग एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यदि कोई डिमांड और रिकवरी है तो वो सेक्शन 73 के थ्रू रिकवर की जाएगी और उसके लिए टाइम पीरियड था 3 years। नाउ 17-18 के लिए ये जो टाइम पीरियड है इसे एक्सटेंड करके कर दिया है 30th September 2023। तो 17-18 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो सेक्शन 73 की टाइम लिमिट है उसे एक्सटेंड कर दिया 30 सितंबर 2023, जो कि पहले ही खत्म हो रही थी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, दैट जो नोटिफिकेशन है उसकी लैंग्वेज ये कहती है, सेक्शन 73 में वैसे तो 5 चीजें कवर होती है। क्या क्या? नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड, इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली यूटिलाइज्ड, एंड फिफ्थ थिंग एरनस रिफंड। लेकिन ये जो टाइम पीरियड एक्सटेंड किया है, एज पर लैंग्वेज ऑफ नोटिफिकेशन, इट इज एक्सटेंडेड फॉर 4 सिचुएशंस: नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, incorrect input tax credit availment and incorrect input tax credit utilization। एरनस रिफंड के लिए 30 सितंबर 2023 डेट नहीं है, जो कि नोटिफिकेशन की लैंग्वेज को पढ़ के ऐसा लगता है। तो एरनस रिफंड के लिए क्या है, एरनस रिफंड के लिए एक और क्लॉज है, उसके लिए कहा है दैट 1 March 2020 से लेकर के 28 Feb 2020 तक का जो पीरियड है, 22 तक का जो पीरियड है, उसे एक्सक्लूड कर दिया जाए। तो 1 March 2020 से लेकर के 28 Feb 2022 तक का जो पीरियड है वो लिमिटेशन पीरियड में से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। टू पुट इट डिफरेंटली, एक तरह से 1 मार्च 2020 से लेकर के 28/2/2022 तक का पीरियड लिमिटेशन पीरियड में ऐड हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोविजन व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, which has been modified in notification 13/2022 for erroneous refund। Now, एक और चीज जो ध्यान रखने की बात है, that इंटरेस्ट के केस में सेक्शन 50 में एक अमेंडमेंट हमने पढ़ा था, that यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड दोनों हुआ तो ही इंटरेस्ट हमें पे करना है एट द टाइम ऑफ रिवर्सल। लेकिन सेक्शन 73 में अभी भी जो सेक्शन 73 को इन्वोक करने के लिए जो ओपनिंग लैंग्वेज है उसमें अभी भी ये लिखा है इनकरेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड और इनकरेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज। यानी अभी तक यहाँ पे अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन नहीं लिखा है, अभी भी अवेल्ड और यूटिलाइज्ड है। तो ये एक तरह से सेक्शन 50 के हार्मोनी में नहीं है, ऑल्दो ट्रेड ने इसके लिए रिप्रेजेंटेशन भेजा है कि जब सेक्शन 50 में आपने चेंज कर दिया, अवेल्ड एंड यूटिलाइज कर दिया, तो सेक्शन 73, 74 या जहां पे भी लॉ में अवेल्ड और यूटिलाइज्ड है उसे अवेल्ड एंड यूटिलाइज कर दिया जाए ताकि सारे के सारे प्रोविजंस इन हार्मनी रहे। देन इस नोटिफिकेशन के थ्रू वन मोर अमेंडमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, सेक्शन 54 एंड सेक्शन 55, जो कि रिलेटेड है रिफंड से। दैट रिफंड एप्लीकेशन जो भी फाइल करनी रहती है वो सेक्शन 54 एंड 55 में रहती है। तो उसमें भी ये कहा है दैट जो टाइम पीरियड है 1 March 2020 से लेकर के 28 Feb 2022, इस टाइम पीरियड को
हम कंसिडर नहीं करेंगे while calculating period of limitation for filing of refund application. And you all might be aware that ये time period सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ कॉग्निजेंस लेते हुए भी एक्सक्लूड किया है, और इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बेसिस पे कई सारी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशंस भी रिवोक हुई है. तो दिस इज beneficial provision for all of us. In fact, similar decision was also given by Madras High Court and different high courts, जहां पे ऐसा कहा है that refund की एप्लीकेशन जब भी अप्लाई करेंगे तो लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट करते वक्त 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक का टाइम पीरियड एक्सक्लूड करेंगे, और अब ये नोटिफिकेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस हो गया लॉ में इटसेल्फ. नाउ जो नोटिफिकेशन 14/2022 है, इट इज वेरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन. बहुत सारी बातें इसमें लिख रखी है, एंड आई विश दैट एवरीवन शुड गो थ्रू इट thoroughly also. Although I will try to summarize as much as possible all the provisions which have been introduced in this notification 14/2022. सबसे पहला प्रोविजन जो है वो सेक्शन 29 को अफेक्ट करता है एंड रूल 21A को अफेक्ट करता है. क्या है ये प्रोविजन? आसान शब्दों में कहें दैट यदि किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने रिटर्न फाइल नहीं किया फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कंपोजिशन में वी आर अवेयर 3 टैक्स पीरियड्स, कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड्स, एंड अदर देन कंपोजिशन नॉर्मल या रेगुलर जो टैक्सेबल पर्सन है वहां 6 महीने का टाइम दिया हुआ है. यदि 6 मंथ्स और कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ने 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा. अब सस्पेंड होने के बाद अभी तक क्या था? सस्पेंड होने के बाद यदि हम रिटर्न फाइल कर देते थे तो भी वो ऑटोमेटिक एक्टिव नहीं होता था. ऑफिसर्स को हमें बोल करके, ऑफिसर को ध्यान में लेकर के ये एक्टिव करवाना रहता. अब क्या प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है दैट यदि किसी एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं किए फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड और उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है, और अभी तक असेसिंग ऑफिसर ने कैंसलेशन का ऑर्डर नहीं पास किया, तो कैंसलेशन के ऑर्डर पास करने से पहले यदि एसएससी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर देता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो सस्पेंडेड रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिव हो जाए. तो अगेन इट इज अ गुड मेजर, ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर है, एंड इनफैक्ट बहुत सारे हमारे एसएससीज के केस में यूजफुल भी रहेगा, बिकॉज कई सारे एसएससीज हैं जिनका रिटर्न फाइल होने के बाद भी आज भी रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है. तो नाउ दिस प्रोविजन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड दैट अगर असेसिंग ऑफिसर के द्वारा कैंसलेशन ऑर्डर से पहले सारे रिटर्न फाइल कर देता है तो उसका सस्पेंडेड रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा. Then rule 43, again a long awaited provision जो हम सब चाह रहे थे. एक्सपोर्टर्स के लिए क्या हो रहा था? एक्सपोर्टर्स के केस में उन्हें MEIS, SEIS के फॉर्म में बेनिफिट्स मिलते थे जिन्हें ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स भी कहा जाता था. तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स या MEIS लाइसेंस जब भी एक्सपोर्टर सेल करते थे तो डिपार्टमेंट की तरफ से ये था दैट क्योंकि ये सेल किया है और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स को गुड्स मानते हुए उसे एग्जेम्प्ट किया गया है, तो इट इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई. तो जैसे ही इसे हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई काउंट किया तो क्वेश्चन अराइजेस अबाउट रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिकॉज ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स को सेल किया और ITC इट इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, देयरफॉर जो एक्सपोर्टर है, जो एसएससी है, उसे उसके प्रोपोर्शनेट में इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करनी रहती थी. नाउ अभी क्या इंट्रोड्यूस किया गया है प्रोविजन दैट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 यानी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से ये मान लिया गया है कि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स को हम एग्जेम्प्ट सप्लाई में कंसीडर नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल ऑफ ITC. यानी अब ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स के रेस्पेक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं है. एंड दिस अमेंडमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017. तो एज फार एज आई रिमेंबर, या जितना शायद मुझे ध्यान है, कई सारे मैटर्स हैं जो डिपार्टमेंट में अभी पेंडिंग है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स को लेकर के, वेदर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना है या नहीं. तो नाउ यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस नोटिफिकेशन, एंड सिंस इट इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 जुलाई 2017, तो जितने भी मैटर्स हैं वन गो में यू गेट ऑल दोस मैटर्स क्लियर्ड एज फार एज ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स के रिलेटेड रिवर्सल ऑफ ITC इज कंसर्न्ड.
नेक्स्ट एक प्रोविजन है ई इनवॉइसिंग, वी ऑल आर अवेयर. देन देयर इज अ रूल 48 जिसमें ऐसा कहा है दैट ऑल्दो एसएससीज पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, लेकिन उन्हें हम एग्जाम भी कर सकते हैं कि वो ई इनवॉइस नहीं बनाए. तो अब जो नोटिफिकेशन आया है ये क्या कह रहा है, अभी तक प्रॉब्लम क्या आ रही थी, कई एसएससी जिनको एग्जाम किया था ई इनवॉइसिंग से, तो वो ई इनवॉइस नहीं जनरेट कर रहे थे. तो देयर वाज डिस्प्यूट विद द रेसिपिएंट दैट क्योंकि ई इनवॉइस में आईआरएन नहीं है, क्यूआर कोड नहीं है, तो हमारे को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी. तो उसको स्मूथ करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजन लेके आए दैट जो एसएससी जिनके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है लेकिन वो एग्जम्प्ट है ई इनवॉइस जनरेट करने से, तो वो एसएससी एक डिक्लेरेशन मेंशन करेंगे ई इनवॉइस पे दैट ऑल्दो दे आर कवर्ड अंडर ई इनवॉइस बट दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस. तो ये डिक्लेरेशन उनको मेंशन करना मैंडेटरी है. देन रूल 86, इसमें एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया है, रूल 86 4B. Now let's go to the background that what the problem was there. Now many a times it has happened that SSC को erroneously refund sanction हो जाता था. अब erroneous refund का one of the common reasons जो शायद हमने कई जनों ने देखा होगा that shut out वाले cases. Commonly सबसे first case वही flash होते हैं that exporter है, उसने shipping bill generate हो गया, GST लग गया, and then जब लोडिंग हुई तो कुछ प्रोडक्ट जो है वो लोड होने से रह गए और उसकी वजह से शट आउट हो गया. तो ऐसी स्थिति में अभी तक सभी क्या कर रहे थे, बिकॉज आइस गेट पे इनवॉइस ट्रांसमिट करनी है तो पूरा रिफंड लेना है, तो जो शिपिंग बिल की वैल्यूज है वही वैल्यूज जीएसटी 3B में अपलोड की, जीएसटीआर 1 में अपलोड की ताकि इनवॉइस ट्रांसमिट हो जाए, रिफंड आ जाए. अब प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स भेजे एक्सपोर्टर ने और 90 यूनिट्स तो अपलोड हो गए, शिपिंग बिल बना 100 यूनिट्स का, जीएसटी बना 100 यूनिट्स का, अपलोड कितने हुए 90 यूनिट्स लोड हुए. अब बचे हुए 10 यूनिट्स जो हैं वो शट आउट हुए, यानी 10 यूनिट्स एक्सपोर्ट नहीं हुए. लेकिन जब एक्सपोर्टर ने रिटर्न्स फाइल किए तो क्या किया, उसने उन 100 यूनिट्स की वैल्यू को ही 90 यूनिट्स की वैल्यू में शो किया और रिफंड क्लेम कर लिया. तो बेसिकली इट इज एन एररनेस रिफंड व्हिच हैज बीन अवेल्ड ऑफ बाय द एक्सपोर्टर. इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों ही तरीके से ऐसा हुआ. तो अब क्या करना है, अगर एररनेस रिफंड है उसे रीपे करना है तो एसएससी ने रीपे भी कर दिया, विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी रीपे कर दिया. नाउ एसएससी के पार्ट पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मैंने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करके रिफंड क्लेम किया, तो अब क्योंकि मैंने रिफंड वापस रीपे कर दिया तो मेरे को वो अमाउंट इनपुट टैक्स क्रेडिट में मिलना चाहिए. तो अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक सब जने जुगाड़ टेक्निक पे थे, दैट पे किया DRC 03 में, GST 3B में क्लेम कर रहे, या फिर some SSC might have been filed again, कुछ अलग तरीके से उन्होंने कुछ किया है. तो अभी यहाँ पे जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया उसमें क्या कहा दैट यदि एररनेस रिफंड मिला है, आपने उसे पे कर दिया विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी बाय डेबिटिंग योर कैश लेजर, वेरी इंपॉर्टेंट, कैश लेजर के थ्रू आपने पे कर दिया, तो अब आप क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन देंगे डिपार्टमेंटल ऑफिसर को और डिपार्टमेंटल ऑफिसर PMT 03 कैपिटल A में ऑर्डर पास करेगा और उस ऑर्डर के थ्रू वो अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. नाउ जैसा कि हमने देखा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद नए नए प्रावधान तो आते हैं, फंक्शनलिटीज एक्चुअल में बनती नहीं है. अभी ये नोटिफिकेशन आ तो गया, 5 जुलाई से एप्लीकेबल भी हो गया, लेकिन फंक्शनलिटी वो अभी नहीं. तो अच्छी बात यह है कि इसके रेस्पेक्ट में सर्कुलर एक है 174 जिसमें फंक्शनलिटी मेंशन ही करके दे दी. फंक्शनलिटी क्या मेंशन की है, दैट यदि आपको रिक्रेडिट चाहिए तो सबसे पहले तो टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी DRC 03 के थ्रू पे करें. और जब DRC 03 में आप टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी पे कर रहे हैं तो जो रीजन सेलेक्ट करना है, तो ड्रॉप डाउन में रीजन आपको सेलेक्ट करना है एररनेस रिफंड. एररनेस रिफंड से रिलेटेड रीजन सेलेक्ट करना है. देन जब तक की फंक्शनलिटी डेवलप हो ऑनलाइन, तब तक इस सर्कुलर के एनेक्सर A में एक फॉर्मेट दे रखा है जो कि रिटर्न एप्लीकेशन का फॉर्मेट है जो हमें ऑफिसर को सबमिट करना है. तो जब तक फंक्शनलिटी डेवलप होती है
DRC 03 फाइल करके आप एक रिटर्न एप्लीकेशन उस फॉर्मेट में जो कि एनेक्सर ए में गिवन है, उस फॉर्मेट में आप डिपार्टमेंटल ऑफिसर को एप्लीकेशन दे दें। उसके बाद डिपार्टमेंटल ऑफिसर या जुरिसडिक्शनल ऑफिसर बेसिक इंक्वायरी या खुद को सेटिस्फाई करते हुए आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ही विल पास एन ऑर्डर इन PMT 03 कैपिटल ए, और उस ऑर्डर को पास करने के बाद जो भी क्रेडिट का अमाउंट है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली एरनेस रिफंड जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करके पे किया था, उसे आपको अगर वापस इनपुट टैक्स क्रेडिट में चाहिए तो DRC 03 कैश में पे करें। उसके बाद पे करते वक्त रीजन सेलेक्ट करें, राइट एन एप्लीकेशन टू द ऑफिसर, ऑफिसर विल पास ऑर्डर इन PMT 03 कैपिटल ए। अगेन आई विल रिपीट, जब तक ऑनलाइन मैकेनिज्म नहीं बिल्ट हो रहा है तब तक आपको इस सर्कुलर 174 डेटेड 6 जुलाई 2022 के एनेक्सर ए में जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में इन राइटिंग एप्लीकेशन देनी रहेगी। एंड डेफिनेटली इन राइटिंग एप्लीकेशन देने के साथ यू शुड सबमिट DRC 03 एंड द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशन दैट आपने किस तरह से कैलकुलेशन किया है। नेक्स्ट, नए मोड्स ऑफ पेमेंट रिकॉग्नाइज किए गए हैं UPI के थ्रू और IMPS के थ्रू इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग मोड्स ऑफ पेमेंट्स। देयर इज नॉट टू मच टू डिस्कस अपॉन इट। यस, दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इंटरेस्ट सेक्शन 50 इनिशियली कुछ और था, उसके बाद उसे रेशनलाइज किया गया और अभी नोटिफिकेशन 9/22 में उसे और रेशनलाइज किया गया। तो अब सेक्शन 50 में क्या कहा है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का मैनर क्या होगा। यदि किसी असेसी ने जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो करेक्ट टैक्स पीरियड में रिपोर्ट की है लेकिन रिटर्न लेट फाइल किया, आई विल अगेन रिपीट, यदि असेसी ने लायबिलिटी करेक्ट टैक्स पीरियड में फाइल की लेकिन रिटर्न लेट फाइल किया तो नेट लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पेएबल रहेगा। नाउ असेसी ने आउटपुट लायबिलिटी रॉन्ग टैक्स पीरियड में डिक्लेयर की तो उसे ग्रॉस अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना रहेगा। Let us understand it with an example. Suppose assessee has issued 10 invoices in April 2022. But while filing GSTR 3B, क्योंकि GST 3B से टैक्स पेमेंट होता है तो हम GST 3B का ही नाम दे रहे हैं। While filing GSTR 3B, assessee has declared only 9 invoices. उसने 9 इनवॉइस डिक्लेयर की अप्रैल 2022 के रिटर्न में। एक इनवॉइस उसने अप्रैल 2022 के रिटर्न में डिक्लेयर नहीं की। अब अप्रैल 22 का रिटर्न 20 मई 2022 तक नॉर्मली फाइल हो जाना चाहिए। असेसी ने फाइल किया 31 मई 2022 को, तो अप्रैल मंथ का रिटर्न असेसी ने फाइल किया 31 मई 2022 को, जबकि ड्यू डेट थी 20 मई 2022। तो क्या होगा, इन 9 इनवॉइसेस के अगेंस्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट करते हुए जो नेट टैक्स लायबिलिटी रहेगी उसके ऊपर ही इंटरेस्ट पे करना होगा फॉर द पीरियड ऑफ डिले, दैट इज फ्रॉम 21 मई 2022 से लेकर के 31 मई 2022 तक। लेकिन जो 10th इनवॉइस है जो अप्रैल में शो ही नहीं किया, उस इनवॉइस को असेसी ने शो किया मई 2022 के GST 3B में। तो बिकॉज दिस इनवॉइस वाज पर्टेनिंग टू अप्रैल 2022 वाज शोन इन मई 2022, तो अब यहाँ पे असेसी को नेट टैक्स लायबिलिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी ऐसा नहीं होगा दैट मई में उसने जो इनवॉइस शो किया उसमें से मई की इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करे और बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज हो। नो, क्योंकि अप्रैल का इनवॉइस था, मई में शो किया, तो मई में जो इनवॉइस शो किया उस इनवॉइस के ग्रॉस टैक्स अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना होगा। सो इसके लिए रूल 88A नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड रिमेंबर, दिस notification is made effective
फ्रॉम 1st of July 2017, यानी फॉर ऑल द इयर्स जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है तब से हमें यही प्रोसेस फॉलो करना रहेगा। देन वन मोर क्लॉज इंट्रोड्यूस जो हमने पहले भी डिस्कस किया, दैट यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड है और उसके बाद उसे रिवर्स कर रहे हैं तो 24% की रेट से इंटरेस्ट पे करना रहेगा। लेकिन रॉन्ग अवेल्ड है और यूटिलाइज नहीं की है तो कोई तरह का इंटरेस्ट नहीं पे करना है। नाउ ये जो रूल 88 है इसमें मीनिंग ऑफ यूटिलाइजेशन, यानी हम कैसे पता करें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज कितनी हुई है। बेसिकली जो रॉन्ग यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट है जिसपे हमें इंटरेस्ट पे करना है, हाउ आर वी गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट? तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए आई हैव टेकन एन एग्जांपल। सपोज इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज की 100 रुपए की। अब 100 रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करने के बाद बैलेंस बचता है 20 रुपीज। 100 रुपीज की इनपुट टैक्स क्रेडिट थी, उसे यूज कर लिया और बचा बैलेंस 20। अब जो 100 रुपए हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज की थी उसमें इनकरेक्ट थी 30 रुपीज। कितनी इनकरेक्ट क्रेडिट थी? 30 रुपीज। तो जो मीनिंग दिया यूटिलाइजेशन का उसमें ये कहा है उसके हिसाब से जो इनकरेक्ट क्रेडिट है वो बैलेंस से जितना सरप्लस है दैट अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज क्रेडिट इनकरेक्ट यूटिलाइज्ड। यानी इन दिस एग्जांपल इनकरेक्ट क्रेडिट इज 30 रुपीज, बैलेंस इज 20 रुपीज। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 10 रुपए हैं वो 10 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ इनकरेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन या रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, जिसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना रहेगा। देन डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होगा? क्योंकि क्रेडिट जो यूज हो रही है सिर्फ टैक्स पे करने के लिए यूज नहीं हो रही है, इट कैन बी यूज्ड एट अदर प्लेसेस। DRC 03 में भी है, रिटर्न फाइलिंग में भी है, इन अपील फाइलिंग भी है। देयर आर सेवरल प्लेसेस जहां पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज कर सकते हैं। तो क्या कहा है, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होगा? यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करके रिटर्न फाइल किया है तो लास्ट डेट जिस दिन रिटर्न फाइल कर देना चाहिए था या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ये मान लिया जाएगा कि उस दिन आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज कर ली। यानी जो कुछ देर पहले हमने एग्जांपल यूज किया कि अप्रैल का रिटर्न 31 मई को फाइल किया जबकि ड्यू डेट थी 20th में, यदि वहां पे इनकरेक्ट क्रेडिट यूज की है तो उसके लिए डेट ऑफ यूटिलाइजेशन विल बी 20th मई 2022। और यदि रिटर्न फाइल कर दिया 18th मई को तो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन विल बी 18th मई 2022। तो रिटर्न फाइलिंग के केस में तो ऐसा रहेगा। इसके अलावा जो भी केसेस रहेंगे बाकी सभी सिचुएशंस में यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली यूटिलाइज्ड है तो द डेट ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज डेबिटेड, that date will be considered as date of utilization. You all are aware that जैसे ही हम इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज लेते हैं एक डेबिट एंट्री हो जाती है क्रेडिट लेजर में और एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है, डेबिट क्रेडिट रेफरेंस नंबर, राइट? तो रिटर्न फाइल कर रहे हैं फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उस केस में तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और द डेट ऑन विच रिटर्न इज फाइल्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। बाकी सभी केसेस में इट विल बी द डेट ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज डेबिटेड। तो जिस दिन क्रेडिट लेजर डेबिट हो गया उस दिन मान लिया जाएगा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसे यूटिलाइज कर दिया गया है। एंड रिमेंबर अगेन दिस नोटिफिकेशन इज इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जुलाई 2017। यानी जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, जितने भी मैटर्स हैं जो आने वाले उन सभी में यही प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगा। देन इसके अलावा कुछ चेंजेस हैं जो बहुत वाइड इम्प्लीकेशन शायद हम लोगों के लिए नहीं है। दैट एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसमें जो एक्यूमुलेट इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका रिफंड का प्रावधान है, लेकिन क्योंकि अभी तक जो मैकेनिज्म है उसके अंदर शिपिंग बिल का होना, इलेक्ट्रिसिटी, लेट मी क्लियर वन थिंग, इलेक्ट्रिसिटी इज कंसिडर्ड एज गुड्स अंडर जीएसटी लॉ। तो जब हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में रिफंड लेना है तो शिपिंग बिल की डिटेल्स अपलोड करना मैंडेटरी है, शिपिंग बिल्स होने ही चाहिए। बट इलेक्ट्रिसिटी के केस में शिपिंग बिल होता नहीं है, तो जो रूल 89 है उसमें कुछ चेंजेस लेकर के आए और इसके साथ एक सर्कुलर भी इंट्रोड्यूस किया है जिसमें कई सारी बातें बताई है दैट किस तरह से वो लोग जो इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं
वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। देन एक चेंज किया है फॉर्मूले में, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड जो कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम रिफंड जो कैलकुलेट करना है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में, उसके फॉर्मूले में चेंज किया है। ऑल्दो चेंज करके ये कहा गया है दैट इससे जो रिफंड है वो ज्यादा मिलेगा और बहुत यूजफुल है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई कुडंट ट्राइड इट बिकॉज आई वाज बिजी ऑक्यूपाइड लास्ट वीक इन सम माय पर्सनल फंक्शन, और अभी 2 दिन में मैं ट्राई नहीं कर पाया। सो आई नीड टू चेक के वास्तव में इस फॉर्मूले से क्या हमें रिफंड एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्या जो नॉर्मल वे से कैलकुलेट करे थे उससे सरप्लस मिलेगा या नहीं। बट एज पर प्रेस रिलीज इट इज अ फैसिलिटेशन मेजर और इससे रिफंड के इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन है। देन रिस्की एक्सपोर्टर्स। नाउ रिस्की एक्सपोर्टर्स के केस में वी ऑल आर फेसिंग वन और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। रिस्की एक्सपोर्टर है कौन से? रिस्की एक्सपोर्टर्स वो हैं जिनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अंडर क्वेश्चन बेसिकली, चाहे उन्होंने जिससे परचेस किया उन्होंने टैक्स नहीं जमा कराया, या उनका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, या फिर L1 L2 यानी उनको जिन्होंने सप्लाई किया उनके सप्लायर ने कोई डिफॉल्ट किया। तो ऐसी सिचुएशन में रिस्की एक्सपोर्टर्स आर देयर एंड सभी के कोई ना कोई रिस्की एक्सपोर्टर्स के रिफंड बहुत टाइम से अटके हुए हैं। एंड इनफैक्ट कोर्ट के डिसीजंस भी आए हैं दैट जहां पे सारी चीजें क्लियर है और लॉन्ग अवेटेड रिफंड्स हैं उनको क्विकली रिजॉल्व करके इंटरेस्ट के साथ पेमेंट किया जाए। तो यहाँ पे जो रूल 96 है उसमें क्या कहा है, उसमें नए सब रूल्स इंट्रोड्यूस किए, रूल 5A, 5B एंड 5C। इन सब रूल्स में ये कहा दैट जो भी रिस्की एक्सपोर्टर्स हैं जिनको भी रिस्की एक्सपोर्टर के क्राइटेरिया में रखा जाएगा, उनके रेस्पेक्ट में जो मैटर है वो ऑटोमेटिकली RFD 01 फाइल होकर के कमिश्नर या जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर के पास चला जाए, चाहे वो मैटर GST डिपार्टमेंट में अटका हुआ हो या प्रोविजन 5B के हिसाब से कस्टम्स में अटका हुआ हो। तो जो भी रिस्की एक्सपोर्टर हैं उनके जो भी मैटर है ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाएंगे, यानी उन ऑफिसर्स को ट्रांसमिट करना है टू द जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर। वो जो ट्रांसफर होगा वो RFD 01 फॉर्म के थ्रू होगा। अब ये RFD 01 फॉर्म जो ट्रांसमिशन में यूज आएगा, इस फॉर्म को मान लिया जाएगा दैट इट इज एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स। यही एप्लीकेशन है रिफंड के लिए। इसके बाद जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर इस एप्लीकेशन को नॉर्मल रिफंड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करते हुए, चीजों को वेरीफाई करते हुए क्विकली डिस्पोज ऑफ करेगा सारी एप्लीकेशंस को। यानी जो रिस्की एक्सपोर्टर्स है जिनके मैटर्स काफी समय से अटके हुए हैं, वो अब उम्मीद है कि क्विकली रिजॉल्व होकर के उनके जो एलिजिबल रिफंड बनता है वो उन्हें डिस्बर्स हो जाए। तो अगेन अ गुड मेजर एंड इनफैक्ट इट हैज वेरी वाइड इम्प्लीकेशन। और आई विल आल्सो सजेस्ट यू कि इससे रिलेटेड कई सारे केसेस भी हैं जिसमें ये स्पेसिफिक ऑर्डर भी पास हुआ है दैट इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि स्पीडी डिस्पोजल तो करना ही है, स्पीडी डिस्पोजल के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना है। 6% से 9% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट रही है, ऑल्दो कई जगह डिस्प्यूट रहा है डिपार्टमेंट का, बट ओवरऑल दिस इज द सिचुएशन। आकाश जी, वो केस लॉज भी आप शेयर कर देंगे क्या? डेफिनेटली मैं आपके साथ केस लॉ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट, नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन जो हम सभी को बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। GST 3B में सभी जने GST 3B फाइल कर रहे हैं। लेट मी फर्स्ट टेक यू टू द GST 3B itself. I hope my screen is visible to all of you. Yes, Akash. And yes, so this is the revised GSTR 3B जिसमें 3.1 में तो कोई परिवर्तन आया नहीं है। इसके नीचे क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया है, एक टेबल इंट्रोड्यूस की है 3.1.1। बेसिकली पिछले कुछ टाइम में आपने देखा था जिनके ऊपर ई-कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना है। तो क्वेश्चन ये राइज हुआ था दैट जिन सर्विसेज पे ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने टैक्स पे किया है उन्हें हम GST 3B में शो कैसे करें। तो उसके लिए एक सर्कुलर आया था पहले, सर्कुलर नंबर 167
ऑफ 2021, उस सर्कुलर में ये कहा गया था दैट जो पर्सन एक्चुअल में सर्विसेज दे रहे हैं वो तो उससे शो करेंगे 3.1 सी में, अदर आउटपुट सप्लाईज में, और ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो वहां पे नहीं शो करके दे विल इंक्लूड इट इन क्लॉज ए, ऐसा उस सर्कुलर में कहा गया। अब उस सर्कुलर की वैलिडिटी खत्म हो गई बिकॉज नाउ इट इज 3.1.1। तो इस टेबल के अंदर जो है, इस टेबल में ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड जो सर्विसेज है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला क्लॉज, द टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पेज टैक्स अंडर सबसेक्शन 9(5) एंड दिस हैज टू बी फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। यानी अब इसे ये वैल्यू 3.1 ए में शो नहीं करना, उसे 3.11 में शो करना है, उसके फर्स्ट क्लॉज में। एंड क्लॉज 2 किसके रिलेटेड है? टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर on which electronic commerce operator is required to pay tax under subsection 5 of section 9. So remember, first clause is to be furnished by electronic commerce operator. Second clause is to be furnished by the registered taxable person making supplies through electronic commerce operator. यानी अब registered persons जो electronic commerce operator के थ्रू सप्लाई दे रहे हैं उन्हें 3.1 क्लॉज में वैल्यूज नहीं शो करनी है, उन्हें 3.1.1 में वैल्यूज शो करनी है, राइट? देन नेक्स्ट आर चेंजेस रिलेटेड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 में काफी सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। 4A को अगर आप देखेंगे तो उसमें तो यू विल नॉट फाइंड एनी मेजर चेंज, इट इज स्टिल कैटेगराइज्ड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स शो करनी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड शो करनी है। देन क्लॉज 3 में इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव। देन 4 में इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम ISD एंड 5th में ऑल अदर ITC। यहां तक तो कोई चेंज है नहीं। चेंजेस कहां है? ITC रिवर्स्ड, क्लॉज नंबर 1, इसमें कहा है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करनी है अंडर रूल 38, 42 एंड 43 वो यहां पे शो करनी रहेगी। एंड ITC रिवर्स के भी दो टुकड़े कर दिए, एक तो लिखा है 1 एंड सेकंड में लिखा है अदर्स। तो 1 में रूल 38, 42 एंड 43 वाली इनपुट टैक्स क्रेडिट डालनी है जिसको हमें रिवर्स करनी है, एज वेल एज वो अमाउंट जो हम अभी तक सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 यानी कि ब्लॉक्ड क्रेडिट को जो पहले पॉइंट नंबर C में शो करते थे, अब यहाँ पे हमें एज अ रिवर्सल ऑफ ITC शो करना रहेगा। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट नाउ रिपोर्टिंग के लिए 17(5) की ब्लॉक क्रेडिट्स को अदरवाइज शो नहीं करके ITC रिवर्सल में शो करना है। अब यहां पे हमने शो कर दिया तो क्वेश्चन ये होता है पॉइंट नंबर 2 में क्या करना। तो ये दो बाइफर्केशन किस लाइन पे है? गवर्नमेंट ने ये कहा है दैट वो ITC जो आप रिवर्स कर देंगे और आगे भविष्य में कभी भी रिक्लेम नहीं करेंगे वो आएगी B के क्लॉज नंबर 1 में। यानी यहाँ पे हमें वो ITC शो करनी है जो हम रिक्लेम नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है रिक्लेम करने वाली कौन सी है? तो जैसा कि आपको पता है अगर 180 डेज में क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं किया तो ITC रिवर्स करो, फिर जब पे कर दिया तो वापस क्रेडिट क्लेम कर लो। तो ऐसी ITC जो 180 डेज वाली है, जिस यानी 180 डेज में जहां हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं किया, दैट हैज टू बी शोन इन क्लॉज 2। तो रिमेंबर, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स हो रही है, ब्लॉक क्रेडिट है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, दैट हैज टू बी शोन इन दिस टेबल अंडर B1। यहाँ पे हमें उसे शो करना है और ये वो रिवर्सल है जो हम रिक्लेम नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो सेकंड क्लॉज है, दिस इज द क्लॉज वेयर हम उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को शो करेंगे जिसे हम फ्यूचर में रिक्लेम करने वाले हैं। यहाँ पे
वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट जो रिसेंटली सर्कुलर इश्यू हुआ है उसमें स्ट्रिक्टली कहा है दैट अभी तक एसएससी इस टेबल को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और सीरियसली इसमें वैल्यूज नहीं डाल रहे हैं। कई सारे एसएससीज इनपुट टैक्स क्रेडिट में से रिवर्सल ऑफ आईटीसी माइनस करके ही दिखा रहे हैं, सीधा ऑल अदर आईटीसी में शो कर रहे हैं, उसे सेपरेटली नहीं दिखा रहे हैं। ऑल्दो आई विल अप्रिशिएट दैट आफ्टर जीएसटीआर 2B जिसको मैंडेटरी किया, कई सारे जने आईटीसी रिवर्सल में फिगर को शो करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले नेट आईटीसी ही शो कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने बहुत स्पेसिफिक कहा है सर्कुलर में दैट ये नहीं चलेगा, आपको जो क्लॉज अलग से दे रखा है उस करेक्ट जगह पे वैल्यूज को रिपोर्ट करना ही रहेगा। देन अब क्लॉज सी है, क्लॉज सी में भी मॉडिफिकेशन। क्लॉज सी में क्या कहा है, देखिए डी का फर्स्ट पॉइंट, आईटीसी रिक्लेम which was reversed in table 4B2 in earlier tax period। तो पहले क्लॉज सी में तो हम वो वैल्यूज डालते थे जो ब्लॉक क्रेडिट है या जिसकी इनपुट हमें नहीं लेनी है। अब इसको चेंज कर दिया, इसमें ये कहा दैट जो आईटीसी हमने रिवर्स की थी 4B2 में, यानी बेसिकली जो कॉमनली हम लोग समझते हैं दैट यदि किसी क्रेडिटर को हमने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो उसकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने रिवर्स की उसे शो किया 4B2 में। यदि हमने उसे पेमेंट कर दिया तो रिक्लेम जब हम कर रहे हैं तो उसे रिक्लेम अमाउंट को शो करना है D1 में। तो देयर इज स्पेसिफिक प्लेस D1 जहां पे हमें reclaim of input tax credit which was reversed earlier has to be shown। then point number 2 में क्या शो करना है, point number 2 में शो करना है आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4) यानी टाइम बार्ड। वो आईटीसी जो टाइम बार्ड होगी 16(4) में लास्ट डेट दे रखी है सितंबर, नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो, नहीं तो नहीं ले सकते। अब जीएसटीआर 2B में तो सारी डिटेल्स ही आती है, तो हमें इजीली पता भी रहेगा दैट कौन कौन से इनवॉइसेस हैं जो टाइम बार्ड है। एंड अदरवाइज ऑल्सो जो भी एसएससी डिटेल बनाता है, जो भी डिटेल रखता है, उसके हिसाब से सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि टाइम बार्ड है अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 उसे हमें कहाँ शो करना है, डी के पॉइंट नंबर 2 में। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पीओएस प्रोविजंस, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन की वजह से आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड कौन सी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे एसएससी का रजिस्ट्रेशन गुजरात में है, उसने कहीं और से राजस्थान में गया, राजस्थान में होटल एकोमोडेशन सर्विसेज ली, वहां जीएसटी नंबर दिया। अब होटल एकोमोडेशन सर्विसेज पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगा गुजरात राजस्थान का, एसएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर गुजरात का है, तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी नहीं। तो ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से रेस्ट्रिक्टेड है, उन क्रेडिट को हमें यहां शो करना रहेगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। डू रिमेंबर दैट जीएसटी 3B में रिपोर्टिंग को लेकर के चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं और साथ ही साथ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन भी आए हैं दैट यू हैव टू रिपोर्ट ऑल दीज वेरी सीरियसली। ऐसा नहीं है इट कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड। नाउ इसको समझने के लिए we will take an example also। now ये एग्जांपल हमने इसलिए लिया है ताकि हमें रिपोर्टिंग पार्ट को बहुत आसानी से समझ में आ सके। क्या है एग्जांपल में, आपके सामने स्क्रीन है। तो व्हाट दिस एग्जांपल सेज, आईटीसी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स 1 लाख रुपीस। नाउ रिमार्क्स में देखें इट सेज ऑटो पॉपुलेटेड, स्क्रीन पे भी वही आ रहा है। Yes. स्क्रीन में भी वही आ रहा है, आप एग्जांपल नहीं आ रहा है। ये एग्जांपल है, इसमें 1 लाख रुपीस शो हो रहा है। नहीं हो रहा, अभी अपन उसी पर है। जीएसटी 3B फॉर्म्स चेंजेस इन रिपोर्टिंग ऑफ आईटीसी एंड आईटीसी रिलेटेड टेबल। जस्ट अ मिनट, नाउ विजिबल? नो, पीपीटी विजिबल है? हाँ पीपीटी विजिबल है। देन दिस वन नाउ? अभी भी वही है, वो 3 पॉइंट्स जो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नहीं, इसमें वैल्यूज नहीं डिस्प्ले हो रही। नहीं, वैल्यूज नहीं हो रही है। जस्ट अ मिनट। अक्षय जी, यस सर। ये पीपीटी का कोई इशू?
सर 1 मिनट रुकिएगा, होल्ड करेगा। एक बार अगर आप स्टॉप शेयर करके एक बार वापस करके शेयर करें। ओके नाउ विजिबल। सर अभी रीसेंट चेंजेस इन जीएसटी फर्स्ट स्लाइड पे है। वो दिख रही है। ओके नाउ दिस इज विजिबल पीडीएफ। नहीं सर। जस्ट अ मिनट, लेट सर क्लोज ऑल द डॉक्यूमेंट। मैं एक आपको- बार सब कुछ क्लोज करता हूं। सर आप वापस जब जैसे शेयर पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास मल्टीपल विंडोज ओपन होंगे, उसमें से एक पीडीएफ का विंडो होगा। एक मिनट। Now Yes sir, now it is visible. IGST, CGST. visible? Table Okay, 1. Yes sir. Correct. So let's take this example. इसमें इस एग्जांपल में का ITC on import of goods it is 1 lakh, ITC on import of services 50,000, ITC on inward supplies under RCM 25,000 each. Now one important thing that see the remark, ये values automatically GSTR 2B से auto populate भी हो रही है. Although we can change the values, but for our ease of understanding, ये values automatically populate हो रही है. Now ITC on inward supplies from ISD, then ITC on inward supplies, यानी remaining ITC. So remaining ITC is displayed here, right? Now, what are the facts which have been given? Note number 1, of the other inward supplies mentioned in row number 5, यानी highlighted one, ABC has received goods on which IT is barred under section 17, subsection 5, having IGST of 50,000. यानी बेसिकली ये ब्लॉक्ड क्रेडिट है जो पॉइंट नंबर 5 में शामिल है, और इस ब्लॉक्ड क्रेडिट की इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें नहीं मिलती है. देन नोट 2, in terms of rule 42 and 43, ABC is required to reverse ITC of 75,500 IGST, 52,000 CGST, 52,000 स्टेट टैक्स. अगेन ये वो ITC का अमाउंट है जो हमें इनपुट नहीं मिलेगा. देन नोट 3, तो अभी तक हमने नोट 1 एंड नोट 2 पढ़े, और नोट 1 एंड नोट 2 का इंप्लीकेशन किधर देखना है हमें, क्लॉज नंबर 5 के साथ जुड़ा हुआ है. Then note 3, ABC had not received supply during April 22 in respect of an invoice for an inward supply auto-populated in row 5 having IGST of 10,000. यानी ये वो 10,000 रुपीस का इनवॉइस है जिसके towards it had not received supply, उसे गुड्स रिसीव ही नहीं हुए. तो अगेन जब तक गुड्स रिसीव नहीं होंगे तो 16(2) के हिसाब से हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी. देन नोट 4 में ABC ने रिवर्स किया है 500 rupees of CGST and 500 rupees of SGST under rule 37, read with section 16 subsection 4, जहां पे सप्लायर को 180 डेज में कंसिडरेशन नहीं पे किया गया. देन साथ ही साथ नोट 5 में कहा that an amount of ITC of 10,000 central tax and 10,000 SGST is ineligible on account of limitation period under section 16 subsection 4. यानी 16(4) में जो टाइम बार्ड हो चुकी है उसके बेसिस पे ये अमाउंट दिया है. अच्छा, साथ ही साथ ये भी कहा है दिस अमाउंट हैज नॉट बीन ऑटो पॉपुलेटेड, यानी यहाँ जो ऊपर ऑटो पॉपुलेशन हो रहा है पॉइंट नंबर 1 से लेकर के 6 में,
यहाँ पे ये नोट नंबर 5 जो है वो शामिल नहीं है। तो अब हम देखते हैं इन वैल्यूज को पुट कैसे करेंगे। तो जो ये जीएसटी R3B की टेबल है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कोई चेंज नहीं, जो ऊपर 1 लाख रुपीज आ रहा था एज इट इज आ गया। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज नो चेंज, सेम 50,000। इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, इट इज अगेंस्ट बिकॉज इसमें कुछ चेंजेस करना ही नहीं है। इनवर्ड सप्लाईज सेम, नो चेंजेस रिक्वायर्ड। ऑल अदर आईटीसी में 2 लाख, 1,50,000, 1,50,000। तो जो यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 है, यहाँ तो हमें यही वैल्यूज शो करनी है। तो नोट नंबर 1 से लेकर के 5 का इंपैक्ट कहाँ देना है? इस पॉइंट के बाद। इस पॉइंट के बाद कहाँ? सबसे पहले B1 में। तो B1 में हमने क्या इंपैक्ट दिया? नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 एंड नोट नंबर 1 एंड 2 दोनों का इंपैक्ट दिया, राइट। तो देखिए नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2, क्योंकि रिवर्सल ऑफ आईटीसी अंडर रूल 42 43 हमने देखा जीएसटी 3B में हमें करना ही था। देन इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 17(5) ये भी हमने देखा, इसे भी यहीं पे रिप्रेजेंट करना था। देन अदर रिवर्सल्स 10,000 रुपीज जो कि नोट नंबर 3 में था, 10,000 रुपीज, ये वो इनवॉइस था जिसकी सप्लाई कंप्लीट नहीं हुई लेकिन इनवॉइस बन गया और रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ऐसी आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होकर के ऊपर शो कर रही है। इसे क्योंकि 16(2) की कंडीशंस के हिसाब से वी आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम दिस आईटीसी इन अप्रैल 22, देयरफॉर ऑटो पॉपुलेट डेटा में से इसे हटाना रहेगा। दैट्स व्हाई इट हैज बीन शोन इन B2। तो ये 10,000 रुपीज इज शोन हियर। देन रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑफ 500 ईच, जो हमने देखा था रूल नंबर 37 में, दैट 500 ईच हमें रिवर्स करना है। 500 ईच वो हमने रिवर्स कर दिया यहाँ पे, दैट इज अंडर पॉइंट नंबर 2 अदर रिवर्सल्स में। सो वी हैव सीन दैट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसे हमें रिक्लेम करना है दैट इज शोन हियर, एंड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो रिवर्स हो गई जिसे हमें रिक्लेम नहीं करना है दैट इज शोन हियर इन पॉइंट नंबर 1। देन इसके अलावा एक और इनएलिजिबल क्रेडिट थी, सेक्शन 16(4) से टाइम बार थी, दैट इज ऑफ 10,000 रुपीज ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो वो कहाँ शो करना है? लास्ट में पॉइंट नंबर D के 2 में, राइट। और ये अमाउंट ऑटो पॉपुलेट होके ऊपर शामिल है भी नहीं, तो इसे यहीं पे शो करना है। तो आई होप दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस दैट किस तरह से हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को जीएसटी 3B में शो करना है, मैंडेटरीली शो करना है। और अब से जो भी जीएसटी 3B फाइल करें नए रिवाइज जीएसटी 3B में, जहां पे जो इंफॉर्मेशन डालनी है वहीं पे वो इंफॉर्मेशन हम प्लेस करें। Now let's go back to slides. Yes. Now circular number 170. Circular number 170 क्या कहता है? That जो जीएसटी 3B में डिटेल्स हमें फीड करनी है, अभी तक क्या होता है 3.2 में कई सारे एसएससी हैं जो 3.2 में डिटेल्स डालते नहीं है, यानी इंटरेस्टेड सप्लाई जो अनरजिस्टर्ड पर्संस को है, या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्संस को है, या यूआईएन को है, करते हैं तो उसका अदरवाइज भी टैक्स इम्प्लीकेशन रहता नहीं है, बट इट इज फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। तो एज पर सर्कुलर 170 इट इज सेड दैट इट इज मैंडेटरी टू रिपोर्ट interstate supplies which are made to unregistered persons, composition taxable persons and UIN holders in table number 3.2. ये mandatory है। Then ineligible and block credit, as हमने डिस्कस कर ही लिया है, जो नॉट रिक्लेमेबल है वो 4B1 में जाएगा और जो रिक्लेमेबल है वो टेबल नंबर 4B2 में जाएगा। और साथ ही साथ सर्कुलर ने ये भी कहा दैट जो भी आईटीसी रिवर्सल हो रही है उसे स्पेसिफिकली जीएसटी 3B में शो करें। तो हमने देख ही लिया है दैट उसे शो करने का और उसे प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। नाउ रिवर्सल इज मर्ज विद ब्लॉक क्रेडिट्स आल्सो। देन
नोटिफिकेशन 14/2022 में एक और मॉडिफिकेशन है जीएसटीआर 9 को लेकर के। अभी तक हमने जितने भी जीएसटीआर 9 फाइल किए वहां पे ऑप्शन था दैट नॉन जीएसटी सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई, इन तीनों को क्लब करके एग्जेम्प्टेड सप्लाई की टेबल में शो कर सकते थे। अभी तक तो ये ऑप्शन था। अब क्या कहा है that non-GST supply has to be reported separately. Non-GST supply को तो separately report करना ही है। आप चाहे तो nil rated and exempted supply इन दोनों को exempted supply के टेबल में क्लब करके रिपोर्ट कर सकते हैं। So this is the first thing which we have to take care of while filing GSTR 9 for financial year 21-22. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है जीएसटीआर 9 को फाइल करते वक्त फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, दैट इज रिपोर्टिंग ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एचएसएन वाइज। एचएसएन वाइज जो आउटवर्ड सप्लाई की हमें रिपोर्ट करनी है उसके रेस्पेक्ट में क्या चेंजेस आए हैं दैट जी यस। मैंने एक मैसेज किया था आपको, पीपीटी नहीं, अपन पीडीएफ पर ही है अभी। पीपीटी नहीं शो रही है? नहीं, अपन पीडीएफ पे मैंने आपको मैसेज डाला था। ओके ओके। Now PPT visible? Yes, PPT visible. Okay. So in GSTR 9 पहला पॉइंट तो हमने ये देखा दैट नॉन जीएसटी सप्लाई को सेपरेटली रिपोर्ट करना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 इन जीएसटीआर 9। नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई को हम क्लब करके एग्जेम्प्टेड टेबल में शो कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है। आउटवर्ड सप्लाई के लिए एचएसएन वाइज आउटवर्ड सप्लाई मेंशन करना मैंडेटरी है इन जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब वहां पे दो लिमिट दे रखी है, फॉर टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ एचएसएन अप टू 6 डिजिट शो करने हैं, फॉर टर्नओवर अप टू 5 करोड़ 4 डिजिट तक के एचएसएन शो करने हैं फॉर B2B टर्नओवर। I don't know why government has introduced this B2B specific. उन्होंने अभी यही कहा था B2B के लिए आपको 4 डिजिट लेवल तक के HSN वाइज टर्नओवर की डिटेल शो करनी है। अगर हम B2C भी रिपोर्ट करेंगे तो वो गलत नहीं रहेगा, बट B2B तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट इज दिस, इतना तो शो करना ही है। एंड जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया दैट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ आर ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9। तो इन टोटल ये हुआ 2 करोड़ तक वालों को कुछ नहीं करना, 2 से 5 करोड़ तक 4 डिजिट लेवल एचएसएन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट करने हैं B2B के टर्नओवर के। एंड दोज एसएससीज हैविंग टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ उनको मैंडेटरीली अप टू 6 डिजिट एचएसएन कोड तक रिपोर्ट करनी है आउटवर्ड सप्लाईज। देन नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और मैं चाहता हूं सभी जने बहुत ज्यादा ध्यान देकर के इसे सुने, क्योंकि ये मैटर्स हैं जो आई थिंक वी ऑल आर फेसिंग रेगुलरली, इश्यू रिलेटेड टू फेक इनवॉइस। कैन आई टेक अ ब्रेक फॉर 1 मिनट? सर आकाश जी।
Sorry to make you on hold. Now, matter related to issue of fake invoices. तो हम सभी जने ऐसे मैटर्स को डील कर रहे हैं. मैटर क्या है? दैट एसएससी है, उसने बिल अरेंज किया विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली और जब उसे यूज कर लिया फर्दर पेमेंट ऑफ टैक्सेस में, और उसके बाद उसने या तो वास्तव में आगे गुड्स को सेल किया या फिर आगे और बिल को सप्लाई कर दिया विदाउट सेल ऑफ गुड्स. तो दीज आर वेरी कॉमनली फेस्ड थिंग्स दीज डेज. ऑलमोस्ट सब जनों के एसएससीज कोई ना कोई ऐसे इंटरेक्ट हो रहे हैं जिन्होंने ऐसा किया, एसएससी ने बता करके नहीं किया बेसिकली. तो फेक इनवॉइसेस से मैटर हम सभी डील कर रहे हैं. अभी तक सबकी कॉमन अप्रोच रही है. कॉमन अप्रोच क्या रही? दैट सपोज मेरा एसएससी है, उसके पास सम्मन आया या इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, पता पड़ा दैट उसने माल तो खरीदा नहीं, गुड्स या सर्विसेज प्रोक्योर नहीं की, सिर्फ बिल लिए और आगे उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज कर लिया फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स. नाउ अभी तक हम लोग क्या अप्रोच फॉलो कर रहे थे? दैट एसएससी के बिहाफ पे वी यूज्ड टू गो टू डिपार्टमेंट एंड से दैट हमारे पास तो सारी चीजें हैं, जीएसटीआर 1 में भी है, इनवॉइस डिटेल्स जीएसटी 3 में भी है और पेमेंट भी किया है. और सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट जो सभी जने कहते थे दैट व्हाई यू आर नॉट गोइंग एंड पाउंसिंग अपॉन द सप्लायर. आप जाकर के सप्लायर को क्यों नहीं कैच कर रहे, आप सिर्फ रेसिपिएंट को क्यों पकड़ रहे हैं? आपको सबसे पहले सप्लायर को पकड़ना चाहिए क्योंकि उसने गलत बिल इश्यू किया. हमने तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ली है. यदि आप सप्लायर को पकड़ के डिमांड रिकवर कर लेंगे तो हमारा मैटर ही क्लोज हो जाएगा. एंड क्योंकि जीएसटी में ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया सप्लायर ने, तो आपको सबसे पहले सप्लायर को पकड़ना चाहिए. आप ये रॉन्ग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं कि आप रेसिपिएंट को पकड़ रहे हैं. दीज आर द कॉमन आर्ग्यूमेंट्स व्हिच वी आर गिविंग इन डिपार्टमेंट. नाउ इस सर्कुलर ने इस पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया. चेंज कैसे किया? एक एग्जांपल दिया उसने कि ए ने इनवॉइस इश्यू किया बी को, सिर्फ इनवॉइस इश्यू किया, गुड्स को सप्लाई नहीं किया. एंड बी ने क्या किया? बी ने सप्लाई किया सी को, उसने अब बिल नहीं बेचा, उसने वास्तव में गुड्स को सोल्ड किया. तो बेसिकली बी ने क्या किया? ए से इनवॉइस लिए विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सी को सेल किया विथ सप्लाई ऑफ गुड्स. तो बी ने जो सी के साथ ट्रांजैक्शन किया, जेन्युइन ट्रांजैक्शन था, सप्लाई किया है, बिल रेज किया, ओके. अब जब प्रॉब्लम आ रही है ए और बी के ट्रांजैक्शन को लेकर, तो सबसे पहली चीज जो एनालाइज की है सर्कुलर ने, क्या ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो सप्लाई है या नहीं. क्योंकि नॉर्मली बी के बिहाफ पे जो भी जा रहा है वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है आप जाके ए को पकड़ो, उसने गलत बिल रेज किया, उसने क्यों बिल रेज किया, उसने गुड्स को नहीं सप्लाई किया, व्हाई शुड आई सफर. तो फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट लेग ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज वेदर सप्लाई, जो बिल इश्यू किया है ए ने बी को, क्या यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में सप्लाई है या नहीं. तो सर्कुलर ने बड़े ही सही ढंग से एनालाइज करते हुए कहा, जो ट्रांजैक्शन ए और बी के बीच में हुआ है, सिंस देयर इज नो supply of goods, no involvement of goods or services, therefore it is not supply at all. ये ट्रांजैक्शन सप्लाई है ही नहीं. तो जब कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई है ही नहीं तो उसमें उसके रिलेटेड टैक्स रिकवरी कैसे करें? तो मैटर यही खत्म हो गया एक ही पार्ट पे. लेकिन ए ने गलती तो किया. गलती क्या की? उसने इनवॉइस तो इश्यू किया है और बिना सप्लाई ऑफ गुड्स के इश्यू किया है. तो ऐसे सिचुएशन के लिए सेक्शन 122 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में प्रोविजन है दैट उसके अगेंस्ट में जो एक्शन इनिशिएट होगा वो सेक्शन 122 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में इनिशिएट किया जाएगा. बट उसके अगेंस्ट में सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती, बिकॉज जहाँ सप्लाई है ही नहीं. तो जब सप्लाई नहीं हुई तो शॉर्ट पेमेंट या नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स की बात ही नहीं आई, और जब नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स है ही नहीं तो सेक्शन 74 इन्वोक ही नहीं कर सकते. तो जितने भी मैटर्स हैं, पेंडिंग मैटर्स हैं, जहां पे ए ने इनवॉइस इश्यू किया है विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ऐसे सप्लायर के अगेंस्ट में सेक्शन 74 इन्वोक नहीं किया जा सकता. उसके अगेंस्ट में ऑफेंसेस एंड पेनल्टी के जो प्रोसीडिंग्स है, सेक्शन 122 की प्रोसीडिंग्स जो है उसे इनिशिएट किया जा सकता है. अब बारी आती है बी की. तो बी ने
इनकरेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की, यानी रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो सेक्शन 73 एंड 74 दोनों ही बहुत क्लियर है। इन पांचों सिचुएशन जो पहले भी हमने डिस्कस की उसे कवर करते हैं। उन 5 में से सिचुएशन है, वन ऑफ द सिचुएशंस इज रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बी ने रॉन्गली इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल किया एज वेल एज यूटिलाइज किया, देयरफॉर उसके अगेंस्ट में सेक्शन 74 में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती है और सेक्शन के अंडर में इंटरेस्ट भी रिकवर किया जाएगा, पेनल्टी लगेगी। तो जिनके पास भी ऐसे एसेसीज हैं जिनके जो कि रेसिपिएंट हैं और उन्होंने आगे गुड्स को सेल किया है, सप्लाई किया है या सर्विसेज सप्लाई की है, एक्चुअल में सप्लाई की है, वो तो इस सिचुएशन में कवर हो रहे हैं और उनके रेसिपिएंट्स के अगेंस्ट में सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग्स शुरू होगी ही। अभी सर्कुलर आ गया है तो डिपार्टमेंट सभी मैटर्स को इसी तरह से डिस्पोज ऑफ करेगा। अभी तक तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में पेंडिंग है मैक्सिमम मैटर्स, तो अब इन सब के अगेंस्ट में बी प्रिपेयर्ड, सेक्शन 74 के नोटिसेस आने वाले हैं। और जो आर्ग्यूमेंट हम अभी तक ले रहे थे दैट गो एंड कैच सप्लायर, जिसने वास्तव में गलती की है, गलत बिल इशू किया है, उसके अगेंस्ट में दे विल स्टार्ट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 122। ऑल्दो आई विल से कि हम इस आर्ग्यूमेंट को क्लेम ही नहीं करें, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली जब हम हमारे एसएससी के बिहाफ पे फाइट करेंगे तो कई सारे आर्ग्यूमेंट्स हम क्लेम करेंगे, बट दिस इज द सिचुएशन व्हिच इज वेरी क्लियर एट द पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट। अब अपन एक स्टेप आगे और बढ़ते हैं। अब ए ने सप्लाई किया बी को विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स, सिर्फ बिल दिया। अब बी ने सी को भी बिल दे दिया। अभी पिछले एग्जांपल में तो हमने क्या देखा था, बी ने वास्तव में सप्लाई किया। अब हम देख रहे बी ने सी को भी बिल दे दिया, एक्चुअल सप्लाई किया ही नहीं, और सी ने आगे एक्चुअल सप्लाई। तो क्या होगा? तो ए और बी की जहां तक बात है, सिचुएशन इज सेम जो प्रीवियस एग्जांपल में थी। ए ने सिर्फ बिल दिया है, सप्लाई किया नहीं है, तो क्या करें? ए के अगेंस्ट में सेक्शन 122 के अगेंस्ट, सेक्शन 122 के अंदर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएगी। अब बी की बारी आती है। पिछले एग्जांपल में बी ने बिल के साथ साथ एक्चुअल सप्लाई भी की थी। अब यहाँ पे बी ने सिर्फ बिल सप्लाई किया है, एक्चुअल सप्लाई की ही नहीं। तो जब बी ने एक्चुअल सप्लाई नहीं की तो एक तरह से उसने ए वाला काम किया। तो सेक्शन 122 सब क्लॉज 1, सब सेक्शन 1 और क्लॉज 2 में उसके अगेंस्ट में सेम प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होगी जो बी के ए के अगेंस्ट में हुई थी। अब उसने एक और गलत काम किया, दैट आगे बिल सेल कर दिया और इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत ली। तो बिना सप्लाई के इनपुट टैक्स क्रेडिट ली, इसलिए उसके अगेंस्ट में सेक्शन 122 क्लॉज 1 सब क्लॉज 7 में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएगी। यानी अब बी की स्थिति ये रहेगी दैट उसके अगेंस्ट में भी जो प्रोसीडिंग्स होगी वो सेक्शन 122 में होगी, सेक्शन 74 में नहीं होगी। क्योंकि अगेंस्ट सेक्शन 74 को इनिशिएट करने के लिए नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स या रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट का होना जरूरी है, दैट इज ट्रू विद सप्लाई ऑफ गुड्स। पर यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स है ही नहीं, दैट्स व्हाई एज पर दिस सर्कुलर बी के अगेंस्ट में ऑफेंसेस के रेस्पेक्ट में जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होगी वो 122 सेक्शन के अंदर इनिशिएट होगी, सेक्शन 74 के अंदर इनिशिएट नहीं होगी। एंड नाउ सी के अगेंस्ट में सेक्शन 74 के अंडर में प्रोसीडिंग्स डेफिनेटली इनिशिएट होगी, जो कि पहले बी के अगेंस्ट में भी हो रही थी सेम वे से, बिकॉज सी आगे जो सप्लाई करेगा वो नाउ अगेन आई विल से सी क्या करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सी बिल बेचेगा तो सेक्शन 122 में उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होगी। सी अगर वास्तव में सप्लाई करेगा तो सेक्शन 74 रीड विद 50 के अगेंस्ट में के अंदर उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होगी। तो फ्रेंड्स प्लीज डू टेक केयर, आपके जितने भी मैटर्स हैं फेक इनवॉइस से रिलेटेड हैं जो पेंडिंग है, उनमें किस सप्लायर किस रेसिपिएंट के रेस्पेक्ट में क्या स्टैंड है डिपार्टमेंट का, ये सर्कुलर से बहुत क्लियर है दैट कहाँ पे वो सेक्शन 122 को इन्वोक करने वाला है, कहाँ पे वो सेक्शन 74 में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने वाला है, और इट ऑल विल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक सिचुएशन ऑफ द assessee, that whether he is engaged only and only supply of bill or he is engaged in actual supply of goods or services or he is engaged in further supply of bills। तो इन तीनों सिचुएशन पे assessee के ऊपर
अलग अलग तरह से प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएगी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर सर्कुलर नंबर 171 of 2022 dated 6th July 2022. I hope we are clear about it. We can proceed ahead. चलिए, now सर्कुलर नंबर 172, कई सारे इश्यूज है जिनको क्लैरिफाई किया है. अगेन इट इज अ वेलकम सर्कुलर बिकॉज एसएससी की कई सारी दुविधाओं को इसने सॉल्व किया है. सबसे पहली सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, हमें पता है ये ब्लॉक क्रेडिट है. इसके क्लॉज बी के सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 3 के बाद एक प्रोविजो है. अब कंफ्यूजन ये हो रहा है कि वो प्रोविजो लगेगा किस पे. तो अगर आपको ध्यान हो 17(5)(b) में क्या रखा है, दैट आउटडोर क्लब मेंबरशिप, फिटनेस वाली सर्विसेज, देन मोटर व्हीकल से रिलेटेड कुछ सर्विसेज है जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है. देन एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कुछ सर्विसेज देता है मैंडेटरी, वो जो उसके टर्म्स ऑफ या कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में या दूसरे कानून में जरूरी है उसे सप्लाई करना, इस तरह की सर्विसेज स्पेसिफाइड है. अब क्लॉज B3 के लास्ट में एक प्रोविजो दे रखा है. वो प्रोविजो क्या है, लेट्स गो टू दैट. Now 17(5)(b)(3 क्या है? 17(5)(b)(3 कहता है travel benefits extended to employees on vacation such as leave or home travel concession, और साथ में एक प्रोविजो था that input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where it is obligatory for an employer to provide the same to its employees under any law for the timing in force. यानी अगर ऑब्लिगेटरी है तो क्रेडिट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी. अब कंफ्यूजन ये था कि ये प्रोविजन लिखा है 17(5)(b)(3 के बाद और उससे पहले लिखा नहीं. तो क्या ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ 17(5)(b)(3 के लिए लगेगा या ये 17(5)(b) क्लॉज एज अ होल के लिए लगेगा? देयर वाज वेरी मच कंफ्यूजन और डिपार्टमेंट हमेशा कहता था कि नहीं ये पूरे 17(5)(b) पे नहीं लगेगा, तो सिर्फ 17(5)(b)(3 पे ही लगेगा क्योंकि ऐसा ही इसमें ड्राफ्ट है. लेकिन जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स थे, जो इस प्रोविजन को इंट्रोड्यूस करने के पीछे थीम थी, उसको एनालाइज करते हुए अब ये क्लैरिफाई कर दिया that this proviso will be applicable on 17 subsection 5 clause B as a whole. यानी जो दूसरी सर्विसेज दे रखी है, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ, फिटनेस, ट्रेवल बेनिफिट्स, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज एंड सो ऑन, तो यदि ये सारी सर्विसेज ऑब्लिगेटरी है ऑन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू इट्स एम्प्लॉइज, देन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, देन उसको 17(5)(b) के ब्लॉक क्रेडिट में से बाहर रखते हैं, यानी उनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी. राइट. देन सेकेंड कंफ्यूजन था 17(5)(b)(1 में. वहां लिखा है दैट आई विल रीड आउट फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, health services, cosmetic and plastic surgery. Now important terms: leasing, renting or hiring of motor vehicles, vessels or aircraft. तो अब कंफ्यूजन ये था that ये जो लीजिंग, रेंटिंग एंड हायरिंग है, ये लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट है या लीजिंग इन जनरल यूज आ रहा है, यानी सारी लीजिंग कवर्ड है या लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट सिर्फ यही ब्लॉक क्रेडिट में कवर्ड है. इसको भी क्लैरिफाई कर दिया दैट यहाँ पे लीजिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट है. सारी लीजिंग्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक्ड नहीं है. देन नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पॉइंट जो क्लैरिफाई किया, हमने देखा कई बार परक्विजिट्स देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को. तो क्वेश्चन ये राइज हुआ दैट ये जो परक्विजिट्स दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो क्या इन परक्विजिट्स पे जीएसटी चार्ज होगा या नहीं चार्ज होगा? तो इस केस में इट इज क्लियरिफाइड दैट यदि
परक्विजिट्स दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के अंदर, तो ऐसी स्थिति में इन परक्विजिट्स पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा, यानी एम्प्लॉयर इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी और नॉट गिविंग एनी सप्लाई टू एम्प्लॉय, इट विल बी आउट ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ जीएसटी. Then next, e-credit ledger can be used to pay any tax liability. Now, electronic credit ledger चाहे सेल्फ प्रोसेस टैक्स या प्रोसीडिंग्स की वजह से कोई टैक्स लायबिलिटी अराइज हुई हो, उन दोनों ही टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज किया जा सकता है. बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है दैट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को सिर्फ सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी में यूज कर सकते हैं, अगर प्रोसीडिंग्स चल रही है तो वहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज नहीं कर सकते, ऐसा कंफ्यूजन चल रहा था. तो इस सर्कुलर ने क्लैरिफाई कर दिया कि आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस को सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी में तो पे कर ही सकते हैं, उसके अलावा दूसरी प्रोसीडिंग्स में अगर कोई डिमांड अराइज हो रही है तो वहां पे भी आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस को यूज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन इज अगेन इन रिलेशन टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जिसमें कहा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को हम इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या कोई और अमाउंट में यूज कर सकते हैं. तो वी आर अवेयर दैट नो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज करके हम इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस तो पे कर नहीं सकते. सो इट इज वेरी मच क्लियर एंड क्लैरिफाइड आल्सो. नाउ, क्या एरनस रिफंड मिला है उसको रीपे करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज कर सकते हैं? कई एसएससी ने ऐसा किया कि एरनस रिफंड उसको मिल गया, अब उसको जब पे करना था तो उसने बोला कि मेरे पास क्रेडिट लेजर का बैलेंस है, मैं तो क्रेडिट लेजर को यूज करके एरनस रिफंड को पे कर देता हूँ. इट इज एज गुड एज डिमांड फॉर मी. तो इट इज क्लैरिफाइड that you cannot use electronic credit ledger to pay back earnest refund. It has to be paid in cash itself. और आपको ध्यान हो तो अभी कुछ देर पहले हमने जो PMT 03A के रेस्पेक्ट में पढ़ा था, वहां पे भी था that DRC 03 में कैश में आपको tax, interest and penalty whichever is applicable you have to pay and then only you can get it as electronic credit ledger, जहां पे earnest refund था. तो डू टेक केयर, एरनस रिफंड के रेस्पेक्ट में वी हैव टू पे इन कैश, हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज करके एरनस रिफंड का रीपेमेंट नहीं कर सकते. देन ई कैश लेजर कैन बी यूज्ड टू पे एनी लायबिलिटी अंडर जीएसटी. तो अब तो हमें पता है दैट PMT 03 इज देयर, जो एसएससी के एक टैक्स के हेड, एक कैश लेजर के हेड के अमाउंट को कहीं पे भी ट्रांसफर करने के लिए एनेबल कर दिया गया था. और आज हमने एक और सबसे पहला ही प्रावधान ये पढ़ा नोटिफिकेशन 9/22 में, जो सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था दैट अगर डिस्टिंक्ट पर्सन है तो वो अपने सेम पैन नंबर पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन में भी कैश लेजर के बैलेंस को ट्रांसफर कर सकता है. तो यस, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैन बी यूज्ड टू पे एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी दैट इज देयर. सो इट इज अगेन क्लैरिफाइड. देन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, दिस सर्कुलर नंबर 173, ये है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड. क्या बताया इस सर्कुलर में? देखिए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में हमें बेसिक चीज पता है दैट यदि रेट ऑफ टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई इज मोर देन रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, देन वी आर एलिजिबल टू क्लेम refund under inverted duty structure. And there was one clarification, one circular was there जिसमें ऐसा कहा that यदि आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई सेम है तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आप रिफंड नहीं ले सकते. अब हुआ क्या दैट कुछ कंसेशनल नोटिफिकेशंस दे रखे हैं और उसके बेसिस पे कुछ सप्लाईज पे कंसेशनल रेट ऑफ टैक्सेस सप्लाई की जाती है. ऑल्दो इनवर्ड जो है वही आउटवर्ड है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन आउटवर्ड पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है बिकॉज ऑफ सम प्रोविजंस ऑफ जीएसटी. तो इस वजह से आईटीसी वाज एक्यूमुलेटिंग. तो क्वेश्चन अराइजेस, क्या इस सिचुएशन में जहां पे इनवर्ड एंड आउटवर्ड सेम है लेकिन आउटवर्ड की टैक्स रेट जो है वो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है, रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्स है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड मिलेगा क्या? तो क्योंकि पहले ऑलरेडी सर्कुलर है जहां कहा दैट अगर इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई सेम है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड. बट नाउ with this circular number 173 dated 6th July 2022,
ये स्पेसिफाई किया दैट यदि सप्लायर आउटवर्ड सप्लाई पे कंसेशनल नोटिफिकेशन की वजह से सप्लाई कर रहा है लो रेट ऑफ टैक्स पे गुड्स को, तो ऐसे केसेस में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड मिलेगा। यानी उसने जो प्रोक्योर किया एज इट इज सप्लाई कर रहा है, लेकिन सप्लाई जो कर रहा है वो कंसेशनल रेट पे कर रहा है बिकॉज ऑफ नोटिफिकेशन अंडर जीएसटी, तो उसे जीएसटी में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है, कंसेशनल नोटिफिकेशन की वजह से रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है उस नोटिफिकेशन की वजह से नील रेट ऑफ टैक्स हो गया या एग्जेम्प्ट हो गया, तो ऐसे केसेस में रिफंड नहीं मिलेगा। तो अगर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई पे रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्स है, कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड मिलेगा। और अगर नील रेट ऑफ टैक्स या एग्जेम्प्टेड है वो नहीं मिलेगा। देन सर्कुलर नंबर 175, इसको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिया है क्योंकि अगेन जैसा कि आपको बताया था एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो अभी अपन ने रूल 96 पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। कुछ क्लैरिफिकेशंस इंट्रोड्यूस किया है दैट किस तरह से एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, क्या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स किस वे से एप्लीकेशन से फाइल करनी है जिससे कि जो एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका रिफंड उसे मिल पाए। देन सर्कुलर नंबर 176 है क्योंकि एक रूल 95 कैपिटल ए था जो कि लगता था रिटेल आउटलेट्स पे दोज हु आर सप्लाइंग टू एट इमिग्रेंट काउंटर्स सप्लाइंग गुड्स एट इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू द इंटरनेशनल टूरिस्ट, उनके लिए रूल 95 ए था। अब क्योंकि रूल 95 ए को रेट्रोस्पेक्टिवली हटा दिया गया है 1 जुलाई 2019 जब से वो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसी के रेस्पेक्ट में एक सर्कुलर था 106 उसे भी हटा दिया गया है। और सर्कुलर नंबर 176 में कहा है दैट यदि कोई रिटेल आउटलेट है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है और वो सप्लाई करता है गुड्स को इंटरनेशनल टूरिस्ट को अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज, तो वो रिफंड के लिए एलिजिबल है, वो रिफंड अप्लाई कर सकता है। देन ना ये तो हमने जो देखे ये सारे जो डिस्कस है जो नोटिफिकेशन 9/2022 से लेकर के 14/2022 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, सारे बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जिसमें इंटरेस्ट रिलेटेड आई विल से वन ऑफ द वेरी मेजर अमेंडमेंट्स, कई सारी चीजें क्लैरिफाई की। इसके अलावा हमने देखा सर्कुलर नंबर 170 से लेकर के सर्कुलर नंबर 176 जो 7 सर्कुलर थे उनमें क्या क्या क्लैरिफिकेशन लेकर के आए हैं, और जिसमें मेजर क्लैरिफिकेशन इंटरेस्ट को लेकर के है या मेजर क्लैरिफिकेशन फेक इनवॉइसेस को लेकर के है, और अनदर मेजर क्लैरिफिकेशन है जीएसटी 3B में डिटेल्स को रिपोर्ट करने को लेकर के है। तो ये सारी चीजें ऑन फ्लोर है, आ चुकी है, हमने डिस्कस कर ली। अब जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कुछ और चेंजेस हैं जो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। सम ऑफ द चेंजेस जो बुलेट पॉइंट्स की तरह आई जस्ट विश टू लेट यू नो। फर्स्ट इज रेट रेशनलाइजेशन। रेट रेशनलाइजेशन जो है वो 2 वजह से करना चाह रही है जीएसटी काउंसिल। एक तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो रिफंड्स बन रहे हैं या जो एक्यूमुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हो रहा है उसे खत्म करने के लिए रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं ताकि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का है सिस्टम उसे मिनिमाइज कर दिया जाए। दूसरा, बिकॉज ऑफ अदर रीजंस दे नीड टू रेशनलाइज ताकि कंपटीशन एंड सो ऑन थिंग्स कॉम्पिटेबल हो सके प्रोडक्ट मार्केट में एटसेट्रा। देन जब जीएसटी काउंसिल ने प्रेस रिलीज इंट्रोड्यूस किया तो उसमें विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशंस भी था, दैट कई सारे एग्जेम्पशंस है जिसे विड्रॉ किया गया है। तो वो कौन कौन से एग्जेम्पशंस हैं अभी तो प्रेस का जो नोट है उसमें तो दे रखा है, बट सिंस अभी तक वो नोटिफाई नहीं किए तो आई डू नॉट फील इट राइट कि हम एक एक एग्जेम्पशन को यहाँ पे डिस्कस करें। लेट देम फर्स्ट नोटिफाइड देन ओनली वी शुड अंडरस्टैंड। देन वन ऑफ द ऑप्शंस, एक अच्छा प्रोविजन जो इंट्रोड्यूस किया दैट जीटीए को ऑप्शन देना चाह रहे हैं ये दैट वो फॉरवर्ड चार्ज में ही पे करे टैक्स को 5% या 12% की रेट से। अब ये ऑप्शन किस तरह से आएगा, क्या इसकी फॉर्मेलिटीज रहेंगी और किस तरह से इसमें ऑप्ट इन ऑप्ट आउट होगा, और ऑप्ट इन ऑप्ट आउट होने के साथ साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा,
ये सारी चीजें हमें देखने को रहेगी जब एक्चुअल में नोटिफिकेशन आएगा. देन वन वेलकम स्टेप या वन वेलकम प्रपोजल जो इंट्रोड्यूस किया है 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने, दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अभी तक जो सप्लाई थी वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन ही कर सकते थे, न तो कंपोजिशन डीलर्स कर सकते थे, न अनरजिस्टर्ड पर्सन कर सकते. अब इन्होंने ऐसा प्लान किया है दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई जो करनी है उसमें अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी परमिशन दे दी जाए, दैट दे शुड आल्सो सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, एंड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को भी परमिशन दे दी जाए दैट दे शुड आल्सो सप्लाई गुड्स और सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या रहेगा प्रोसेस के लिए? वी हैव टू वेट फॉर अ बिट बिकॉज इसके रिलेटेड हैंडओवर किया हुआ स्पेसिफिक कमेटी को जो फ्रेम करेगी दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है उनके थ्रू यदि सप्लाई की जाती है बाय अनरजिस्टर्ड पर्संस या बाय कंपोजिशन टैक्सेबल पर्संस तो क्या प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए. देन जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल, एज वी आर अवेयर दैट 5 साल हो चुके हैं जीएसटी को इनफोर्स हुए और इन 5 सालों में आज भी हम कमिश्नर अपील्स के बाद सीधा हाईकोर्ट में जा रहे हैं. जो बीच की कड़ी है जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल, फॉर वन और मैनी रीजंस जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल अभी तक कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हो पाई है. तो जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इस काउंसिल मीटिंग में भी बहुत पॉजिटिव वे से डिस्कशन हुआ है एंड अगेन एक स्पेसिफिक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जिसे कहा है दैट जितने भी कंसर्न्स है रिलेटेड टू जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल उन सबको कंसीडर किया जाए और उन सबको सॉर्ट आउट किया जाए ताकि जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वो जल्दी से जल्दी इनफोर्स आ सके. और जो पेंडिंग मैटर्स है कमिश्नर अपील्स के बाद जो इनको अपील फाइल करनी है, जो अभी तक अपील फाइल करने के लिए अवेट कर रहे हैं, जो हाईकोर्ट में नहीं गए हैं, उनके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप हो सके ताकि वो अपेलेट ट्रिब्यूनल में जा सके रादर देन गोइंग डायरेक्टली टू हाईकोर्ट. सो these are the major changes or we can say major amendments or recent amendments which have been introduced by GST council, which have been introduced in pursuant to GST council meeting, जिसमें कुछ notifications आ गए और rate related notifications का हम वेट ही कर रहे हैं. तो I hope that जल्दी ही rate related notifications हमारे पास आए और उनको कैसे यूज करना है from 18th of July we can understand and plan the same. Thank you, Akash ji. Over to you, Dhaval ji. Thank you, Akash ji. Now I would like to request all the members, if there are any query, they may raise hands so we can take question and answer. Correct. In case अगर किसी को कोई query है तो we would be happy to take those queries. In fact, I would suggest one more thing. Recently, today also, I had discussion with one of the fellow member about inverted duty structure. I have a YouTube channel Unzipping GST, जिसपे कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं जो मेंबर्स एट लार्ज के लिए यूजफुल है. उसमें वन ऑफ दी वीडियोस जो बहुत इनिशियली हमने अपलोड किया था वो था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड को लेकर के. और बिलीव मी, यूजिंग दैट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड के लिए जो मैकेनिज्म हमने फॉलो किया, मोस्ट ऑफ आवर प्रोफेशनल ब्रदर्स हैव फॉलोड द सेम एंड आज की डेट में ऑलमोस्ट सभी के जो एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस है क्लाइंट्स के वो मिनिमल एंड जीरो हो रखे हैं. एंड एज पर माय इंफॉर्मेशन दैट दिस मैटर वाज डिस्कस्ड एट लेंथ इन द डिपार्टमेंट आल्सो. मतलब डिपार्टमेंट की टॉप मोस्ट अथॉरिटी तक भी ये मैटर डिस्कस हुआ एंड अल्टीमेटली दे एग्रीड विद आवर व्यू दैट यस, आप लोग जो बात कह रहे हैं वो करेक्ट है और उसमें लॉफुली कहीं पे भी लूपहोल नहीं है और उस प्लानिंग को लेकर के यू कैन मैक्सिमाइज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड ऑफ योर क्लाइंट. आई डोंट नो कि फ्यूचर में उसको लेकर के गवर्नमेंट क्या सोच लेकर के आएगी, क्या रेस्ट्रिक्शन लेकर के आएगी, बट प्रेजेंटली वी आर डूइंग दैट एंड वी आर सक्सेसफुली डूइंग इट. एंड in fact, not only we, most of our professional brothers are doing that and getting refunds. So if you have any day-to-day issues, you can refer to our YouTube channel also, Unzipping GST, जिसमें हमने layman language में जो burning issues है उनको लिया है. Over to you, Dhaval ji.
Thank you, Akash ji. I think there is no query. So धवल जी अगर क्वेरी नहीं है तो दो बातें हैं, या तो मैं एक्सपर्ट हूँ या फिर किसी ने कुछ सुना नहीं. ऐसा नहीं है, सुना तो है क्योंकि जब पीपीटी नहीं चल रही थी तो कुछ मैसेज भी आए थे. तो आई एम प्रिविलेज्ड के सभी को सब कुछ समझ में आ गया. दैट्स ग्रेट. I would like to thanks CA Akash Fofalia ji for wonderful deliberations. All the circulars were discussed in details. I would like to request CA Pooja Dhoot for official vote of thanks. Pooja ji. Pooja ji. Yes, sir. Please official should vote I- of thanks. Sorry. Official vote of thanks के लिए. I think I'm in a poor network area. I can't hear you, sir. Can No you hear issue. me, sir? No issue. Yes. I would like to request Secretary CA Pooja Dhoot for official vote of thanks. Now audible? Yes, sir, audible. Thank you so much, C. Akash Fofalia, sir, for the amazing session on recent changes. You have shared your knowledge in a very delightful manner, in an amazing presentation. Thank you so much on behalf of Jodhpur branch, and hope to see you soon on such webinars so that you can impart more and more knowledge to us. Thank you so much, sir. And okay, over to you, Dhaval, sir. Thank you, Pooja ji. And I would like to thanks all the participants for patience hearing, and also thankful to our technical team for supporting us. Thank you very much. We should end the meeting. Thank you, Akash ji, once again. Thank you.